यीशु मसीह के कादिर दीन जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज सुबह हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम आज फिर उसके हजूर में हाजिर हुए और हम एक खास इबादत करने को आज मौजूद है। आज हम सब जानते हैं कि हम खजूरों का इतवार सेलिब्रेट करने के लिए खुदा के हजूर में आए हैं। पाम संडे मनाने के लिए खुदा के हजूर में आए हैं। तो आए हम सब आज पाम संडे के ताल्लुक से खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि इस वाक़े की क्या अहमियत है। मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम को खोलिए। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील उन्नीसवां बाब उसकी 38वीं आयत पढ़ी जाएगी। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील उसका 19वां बाब 38वीं आयत पढ़ी जाएगी और कलाम में यूं मरहूम है कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा आपकी बरकत कसरत के साथ नाज़िल हो। आमीन। तशरीफ रखें। मेरे अज़ीज़ों, आज हम मुख्तसर वक्त के लिए इस बड़े वाक़े के बारे में जानेंगे। इस वाक़े के पस मंजर के हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये वाक़या बहुत खास और अहमियत का हामिल है। जब हम नए अहदनामा में चारों अनाजील का मुतालिया करते हैं तो ये वाक़या हमें चारों अनाजील में मिलता है। यानी मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील और इसी तरह से लूका तबीब की अंजील और फिर यूहन्ना की अंजील। चारों अंजील में ये वाक़या हमें तफसील के साथ मिलता है। इसका मतलब है कि ये वाक़या बड़ा खास वाक़या है जिसको चारों राइटर्स ने कलमबंद किया है और उनकी ये ख्वाहिश रही कि आने वाले अदवार के लोग भी इस वाक़े के बारे में जान सके। ये वाक़या मैंने बताया कि खास वाक़या है और ये यीशु मसीह की जिंदगी में ऐसा वाक़या जो 3.5 साल उन्होंने मनादी की पहली दफा उन्होंने अपने आप को बादशाह डिक्लेयर किया है। तो ये पहला वाक़या है जो यीशु मसीह की जिंदगी में 3.5 साल की खिदमत में पहली बार हुआ। और यही वजह है कि चारों राइटर्स ने इसे तफसील के साथ फिर बयान किया है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब यीशु मसीह यरूशलेम को दाखिल होने को है और जैतून के पहाड़ पर पहुंचे जहां पे बैतफगे है और बैतनिया है, उसके पास पहुंचे तो उन्होंने अपने 2 शागिर्दों से कहा कि सामने के गांव में जाओ
اور وہاں پہ تمہیں ایک گدھی کا بچہ بنا ہوا دکھے گا، اسے کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ اسے کیوں کھولتے ہو، اسے کیوں لے کر جاتے ہو، تو کہنا کہ ہمارے مالک کو اس کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی ہوا، دو شاگرد گاؤں میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی انہیں کچھ ہی فاصلے پر گدھی کا بچہ بنا ہوا دکھا۔ انہوں نے اسے جا کر کھولنے کی کوشش کی تو جو مالک ہے وہ پاس آ کر کہتا ہے کہ میاں تم اسے کیوں کھول رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے، مل کر بولے، ہمارے خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ زور سے بولے، ذرا جان کے ساتھ بولے، ہمارے خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اس پر وہ مالک جو ہے وہ خاموش رہا اور انہیں لے جانے دیا۔ جب دونوں شاگرد اس گدھی کے بچے کو لے کر یسوع کے پاس پہنچے تو اپنے کپڑے اتار کر اس پر ڈال دیے تاکہ یسوع اس پر سوار ہو جائے۔ جب یسوع اس پر سوار ہوئے تو وہ یروشلم کو داخل ہونے کو ہے۔ اب جیسے ہی یروشلم میں داخل ہونے کو ہے تو لوگوں کو جب پتا چلا کہ بادشاہ آ رہا ہے، انہوں نے کھجوروں کی ڈالیوں کے ساتھ اس کا استقبال کرنا شروع کیا۔ کھجوروں کی ڈالیوں سے یسوع کا استقبال کرنے لگے۔ اب میں نے کہا کہ میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس واقعے کے حقائق کو بھی ضرور بیان کروں۔ تو جو کھجوروں کی ڈالیاں ان اسرائیلی یہودیوں کے ہاتھوں میں ہیں، انہوں نے کھجوروں ہی کی ڈالیاں کیوں پکڑی تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم جو آج کھجوروں کا اتوار منا رہے ہیں تو یہ وہی واقعے کی یاد ہے، یہ وہی واقعے کی کیا ہے؟ یاد ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں نے کھجوروں کی ڈالیاں لہراتے ہوئے اور گدھی کے بچے کے سامنے، اس کے پاؤں کے سامنے بچھاتے ہوئے یسوع کا کیا کیا تھا؟ استقبال کیا تھا۔ تو کھجوروں کی ڈالیوں کا ذکر کیوں ہے، یا کیوں انہوں نے کھجوروں کی ڈالیاں استعمال کی ہیں، یہ ایک بڑا راز ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو مختصر طور پر بتاؤں گا، یہ جو کھجوروں کی ڈالیاں استعمال کی گئی ہیں، یہ اس دور میں جب بادشاہ جنگ جیت کے آتا تھا تو اس کا استقبال کھجوروں کی ڈالیاں لہراتے ہوئے کیا جاتا۔ خبر جب پہنچ جاتی کہ بادشاہ جنگ جیت کر آیا ہے تو جو رعایا ہوتی، جو عوام ہوتی، وہ کس طرح سے استقبال کرتی تھی بادشاہ کا؟ کھجوروں کی ڈالیاں لے کر شہر کے پھاٹک پر آ جاتے اور کھجوروں کی ڈالیاں لہراتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے اور شادمانی کرتے کہ بادشاہ فتح مند ہو کر آیا ہے۔ بادشاہ کیا ہو کر آیا ہے؟ فتح مند ہو گیا ہے، فتح حاصل کر کے آیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلی جو ہیں، یہ جو یہودی ہے، یہ کیوں کھجوروں کی ڈالیاں لے کر اس بادشاہ کا استقبال کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، یہودی
रसूल के मुताबिक, उनके अकीदे के मुताबिक कि एक मसाया आएगा जो हमें रूमी गुलामी से, रूमी हुकूमत से छुटकारा दिलाएगा और वो बादशाह हमें फतह हासिल करवाएगा। इसीलिए वो खजूरों की डालियों के साथ इस बादशाह का इस्तकबाल कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो यरूशलेम में दाखिल होते हुए जब ये लोग यीशु का इस्तकबाल कर रहे हैं तो उसकी शान में अपने कपड़े उतार कर उस गधी के बच्चे के सामने बिछा रहे हैं। कहां पर बिछा रहे हैं जी? यीशु के सामने बिछा रहे हैं। उस गधी के बच्चे की अहमियत नहीं है, उस पर जो सवार है उसका इस्तकबाल कर रहे हैं और उसके सामने जो है ये अपने कपड़े उतार कर बिछा रहे हैं। ये अलामत है इस बात की कि हम इसको ऑनर देते हैं, हम इसको इज्जत देते हैं। ये हमारा मालिक है, ये हमारा बादशाह है। और फिर नारे लगा रहे हैं। हमने जो हवाला पढ़ा उसमें हमने पढ़ा है, क्या लिखा है कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो बादशाह है जो किसके नाम से आता है? खुदावंद के नाम से आता है। अब है ये बादशाह, लेकिन ये सवार किस पर है? गधी के बच्चे पर। अमूमन जब बादशाह जंग जीत के आते हैं तो किस पर सवार होते हैं? घोड़े पर सवार होते हैं। जंग लड़ने के लिए जाते हैं तो किस पर? घोड़े पर। ये उस दौर में घोड़ा जो था वो शान की अलामत समझा जाता। घोड़ा जो था वो बादशाह के लिए क्या समझा जाता? शान की अलामत समझा जाता था। और बादशाह अच्छी सवारी पर, शाही सवारी पर सवार किया करते थे। लेकिन ये बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, ये किस पर सवार है? गधी के बच्चे पर। तो ये गधी के बच्चे पर सवार होने का भी एक मकसद था। वो मकसद ये था कि गधी के बच्चे पर सवार होना हलीम होने को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? हलीम होने को जाहिर करता है। यीशु मसीह शानो शौकत नहीं चाहता, यीशु मसीह वो रुतबा नहीं चाहता, वो तख्त नहीं चाहता, वो किसी से सल्तनत छीनना नहीं चाहता, वो किसी से मुल्क छीनना नहीं चाहता, वो किसी से तख्त छीनना नहीं चाहता, बल्कि वो खिदमत करने के लिए आए। हालेलुया। यीशु मसीह का गधी के बच्चे पर सवार होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो अपने आप को दिखाना चाहते थे कि मैं दूसरे बादशाहों की तरह बादशाह नहीं हूं। मैं शानो शौकत नहीं चाहता, मैं किसी से कुछ छीनने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं। और ये उनका अमल हलीमपन को जाहिर करता है, हलीमी को जाहिर करता है कि ये बादशाह हलीम है और ये बादशाह खिदमत करने आया है। ये बादशाह तख्त पर राज करने के लिए आया नहीं। अब ये जो लोग हैं, ये जो यहूदी हैं, ये नारे लगा रहे हैं कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, और होशाना के नारे लगा रहे हैं। और फिर ये पेशन कोई भी पूरी हुई है। ईसाया की किताब में, यिर्मयाह की किताब में
اور اسی طرح سے ظہور میں یہ پیشن گوئی پہلے سے کر دی گئی اور وہاں پہ صاف جملے ہیں، دیکھ تیرا بادشاہ جو حلیم ہے، کدی کے بچے پر بلکہ لاتو کے بچے پر سوار ہوں گے آتا۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ اس پیشن گوئی کی بھی تکمیل ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ کس کی تکمیل ہے؟ اس پیشن گوئی کی بھی تکمیل ہے۔ یسوع المسیح نے یہ جو عمل کیا یہ فرشتوں کو پورا بھی کرنا تھا جو یسایہ نبی کے وسیلہ سے پہلے سے خدا نے ظاہر کر دیے تھے، یرمیہ نبی کے وسیلہ سے ظاہر کر دیے، داؤد نبی کے وسیلہ سے پہلے سے ظاہر کر دیے، اور ان واقعات کا ہونا ضروری تھا کیونکہ یسوع المسیح ان پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے زمین پر آئے، اور یہ واقعہ بھی ان پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی کا پورا ہونا ضرور تھا۔ تو جب لوگ نعرے لگا رہے ہیں، دیکھ بادشاہ، ہاللویا کے نعرے لگا رہے ہیں، ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، مبارک ہے وہ جو بادشاہ خداوند کے نام سے آتا ہے، تو ساتھ ہی ہے آسمان پر کیا ہے؟ عالم بالا پر ہوشنا، عالم بالا پر ہوشنا۔ صرف زمین پر نعرے نہیں لگ رہے بلکہ عالم بالا پر بھی نعرے لگ رہے ہیں، عالم بالا پر بھی خوشی منائی جا رہی ہے، اور یہ بادشاہ صلح کروانے آیا۔ ہم نے آیت میں پڑھا لکھا ہے، 38ویں آیت میں لکھا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر چلا۔ آسمان پر کیا ہے؟ صلح، صلح کروانے کے لیے یہ بادشاہ آیا۔ میرے عزیزو، یہ بادشاہ انوکھا بادشاہ ہے، یہ بادشاہ عام بادشاہ نہیں ہے۔ عام بادشاہ وہ اپنے آپ کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، اپنی شان و شوکت کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی فیملی کے بارے میں سوچتا ہے، اور اپنے رتبے کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایسا بادشاہ پروٹوکول چاہتا ہے۔ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ پروٹوکول چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آؤ بھگت کی جائے، ہمارے آگے پیچھے لوگ گھومیں، ہمیں ویلکم کریں۔ لیکن یہ بادشاہ خاص بادشاہ ہے، نرالا بادشاہ ہے، جلالی بادشاہ ہے۔ اس نے کسی کو اکٹھا دیا نہیں ہے، اس نے کسی کو دعوت دی نہیں ہے، بلکہ جب یہ یروشلم میں داخل ہونا شروع ہوا تو لوگ خود بخود ہی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی بھیڑ تھی یہ کیسے پھر جمع ہو گئے؟ تو مفکرین یہ بات بتاتے ہیں کہ عنقریب فسح کی عید منانے کو تھے۔ یہ یہودی جو اسرائیلی ہیں یہ عنقریب کون سی عید منانے کو تھے؟ فسح کی عید منانے کو تھے۔ تو یہ جو یہودی اسرائیلی اکٹھے ہوئے تھے یہ دور دراز سے بھی اکٹھے ہوئے ہیں، الگ الگ گاؤں دیہاتوں سے بھی لوگ آئے ہیں، الگ الگ شہروں سے بھی لوگ آئے ہیں، اور یہ جمع اس لیے ہوئے ہیں فسح کی عید منانے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے گدھی کے بچے پر یسوع بادشاہ کو آتے ہوئے دیکھا تو سب جمع ہو گئے اور نعرے لگانا شروع ہو گئے، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہاللویا، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور عالم والا پر ہوشنا کے نعرے لگا گئے۔ میرے عزیزو، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو اسرائیلی ہیں، جو یروشلم کے رہنے والے اور آس پاس کے رہنے والے لوگ
सब एक वक्त है कि ये नारे लगा रहे हैं, यीशु को क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और शाहाना तौर पर इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यही लोग हैं जो यीशु के लिए ये भी नारे लगा रहे थे, इसे सलीब दो, इसे क्या दो, सलीब दो। ये लोग कोई अलग लोग नहीं है। आप ये ना समझिएगा कि नारे लगाने वाले अलग लोग थे और जो यीशु को मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, सलीब दिलवाना चाहते थे, वो अलग लोग हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि यही लोग थे जो आज क्या कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, मुबारक है वो बादशाह जो खुदा के नाम से आता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यही लोग नारे लगा रहे थे, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। मेरे सिस्टरों, आपकी जिंदगी में भी ऐसे वाकयात होंगे। आपके साथ जो आज लोग जुड़े हुए हैं, आज वो आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपके लिए वो नारे भी लगा रहे हैं, अपने कपड़े उतार उतार कर आपके सामने बिछा रहे, अपनी जुबान से बड़े खूबसूरत जुमलों में आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी इज्जत को चार चांद लगा देंगे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद वही लोग आपकी जान के दुश्मन भी हो जाएंगे। एक खादिम के साथ अक्सर ऐसे वाकयात होते रहते हैं, अक्सर कलीसियाओं में ऐसे वाकयात होते हैं। तो खादिमों को ये समझ लेना चाहिए कि ना यीशु मसीह छड़िया हम और आप किसके, हमारी आपकी क्या औकात है, हम कोई औकात रखते हैं? जब यीशु के सामने यही लोग नारे लगा रहे हैं, बादशाह का इस्तकबाल कर रहे हैं और कुछ ही अरसे के बाद यही लोग कह रहे थे इसको सलीब दो। जब यीशु के साथ लोग ऐसा कर सकते हैं तो एक खादिम के साथ करते हुए क्या ख्याल करेंगे ये लोग? मेरे सिखों, ये बादशाह अनोखा है, ये बादशाह बदला लेने नहीं आए। जब ये कह रहे थे मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, यीशु को उस वक्त भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जब ये लोग कह रहे थे इसको सलीब दो, यीशु को उस वक्त भी कुछ भी फर्क पड़ नहीं रहा था। बल्कि ये वाकया हमें 39 आयत में ये मिल जाता है, बल्कि 39 आयत में ये वाकया मिल जाता है कि फकीह फरीसी यीशु के पास आए और यीशु के पास आकर कहते हैं, मालिक ऐ उस्ताद इनको मना कर कि ये किस तरह के नारे लगा रहे हैं। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। यीशु को इनके नारों की जरूरत थी? यीशु को इनके नारों की जरूरत थी? ये जो आज नारे लगा रहे हैं, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, और फिर बाद में कह रहे थे इसको सलीब दो, क्या यीशु को इनके नारों की जरूरत थी? अगर ये चुप भी हो जाते तो पत्थर भी चिल्ला उठते, क्योंकि बादशाह का इस्तकबाल होना जरूरी था। ये वाकया, ये पेशन को पूरी होनी जरूर थी कि बादशाह का इस्तकबाल किया जाए। मेरे अजीजों, सवाल पैदा होता है कि ये जो लोग थे, ये क्यों इन्होंने ऐसा किया? इन्होंने ऐसा क्यों किया कि एक वक्त तक नारे लगा रहे हैं और अगले ही कुछ दिनों के बाद ये कह रहे हैं कि इसको सलीब दो। हर इंसान जो है वो मतलब परस्त है, मफाद परस्त है। जब उसका मतलब पूरा नहीं होता तो वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। आजकल एक खादिम फेसबुक पर जो है वो बयान कर रहे हैं, रात ही में मैंने उनका एक जुमला पढ़ा, मुझे पढ़कर इस बात का दुख हुआ कि एक खादिम को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। उन्होंने ये लिखा कि जब मैं इनका मकसद पूरा किया करता था,
जब मैं इनका मतलब पूरा किया करता था, जब इनकी जरूरतें पूरी किया करता था, तब मैं अच्छा था, तब मैं अच्छा था। आज मैंने मतलब इनका पूरा करना बंद कर दिया है, आज इनके मकासद पूरे करने मैंने बंद कर दिए, आज मैंने अपना हाथ सारा रोक लिया, तो आज मैं क्या हो गया हूं? बुरा हो गया हूं। तो ये हर खादिम की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है। अच्छे बुरे लोग हर खादिम को मिलते हैं। मेरे शिष्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि यीशु को भी ऐसे लोग मिलेंगे। यीशु को ये लोग जो शाहाना तौर पर इस्तकबाल कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, यही लोग जब इनका मकसद नहीं पूरा हुआ था, और अब सवाल पैदा होता है कि इनका मकसद क्या था? मकसद इनका ये था कि ये वो मसाया है जो हमें रोमी हुकूमत से आजाद करेगा। ये वो बादशाह है जो हमें रोमी हुकूमत से क्या करेगा? आजाद करेगा, हमें गुलामी से छुड़ाएगा। हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, हम मौज करना शुरू हो जाएंगे, ऐशी करेंगे, हमारे पास बहुत पैसा होगा, हम मालिक बन जाएंगे, हम इस मुल्क में राज करना शुरू हो जाएंगे। जब उन्होंने ये देखा कि ये तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो शाहाना तौर पर दाखिल हुआ है, लेकिन ये तो फिर मौजज़ा नहीं कर रहा है, ये तो फसा कर रहा है, ये तो ऐसा कुछ भी कर नहीं रहा, तो फिर उसके खिलाफ हो गए और नारे लगाना शुरू कर दिए। आज भी लोगों के जब मकसद पूरे नहीं होते, जब उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, जो वो चाहते हैं, जो उनकी आस होती है, जो उम्मीद होती है, जब वो टूट जाती है, पूरी नहीं होती, तो वो खिलाफ हो जाते हैं और जान लेने तक आ जाते हैं। लेकिन ये बादशाह क्या रहा? खामोश। जब नारे लगा रहे हैं तब भी खामोश है, जब नारे लगा रहे हैं इसको सलीम दो तब भी खामोश है। यीशु ने कोई भी जवाब नहीं, यीशु ने कोई भी जवाब नहीं। मेरे शिष्यों, आज खजूरों के एतवार के दिन हमारे लिए एक खास पैगाम है कि हम आज जिसके दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस वाक़े को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बादशाह हमारा बादशाह। वो बादशाह किनका है? वो बादशाह किनका है? हमारा बादशाह है। और हमने जो अपने चर्चेस में खजूरों की डालियां लगाई हुई हैं, जो अपने खजूरों की डालियों के साथ सजावटें की हुई हैं, आज हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम अपने उस बादशाह के लिए खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो फातेह है। जो क्या है? फातेह है, जो फतहमंद है, जिसने फतह हासिल की है। और ये बादशाह अनोखा बादशाह है। ये बादशाह बादशाहों का बादशाह है। ये बादशाह कैसा है? मिलकर बोले जी, आखिरी अल्फाज है। ये बादशाह कैसा है? बादशाहों का बादशाह है। ये बादशाह कैसा है? बादशाहों का बादशाह है। हम ज़बूर गाते हैं, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। जलाल का सिर्फ एक ही बादशाह है, और वो बादशाह हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। जलाल का बादशाह एक ही है, और वो कौन है? मिलकर सब नाम ले। कौन सा बादशाह है? खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है, जो बादशाह अनोखा बादशाह है, जो जलाली बादशाह है, जो राज करेगा, करता है और करता ही रहेगा। दुनिया के बादशाहों की हुकूमत 5 साल है, 3 साल है, फिर खत्म हो जाती है, लेकिन इस बादशाह की हुकूमत ताहयात चलती रहेगी। हम ज़बूर गाते हैं, रहेगा नाम सदा दिकर मसीहा। ये नाम हमेशा तक रहेगा,
یہ نام کبھی ختم ہو سکتا نہیں ہے، یہ بادشاہ کبھی اپنی سلطنت چھوڑ سکتا نہیں ہے، اس بادشاہ کی رعایا کبھی ختم ہو سکتی نہیں ہے، اس بادشاہ کی بادشاہی کبھی بھی ختم ہو سکتی نہیں۔ ہاللیلویا، مل کر ہم سب نام لگائیں گے، ہاللیلویا، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا ان کے نام سے، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج ہم سب اس بات کے لیے سیلیبریٹ کریں کہ ہم اس بادشاہ کی پرستش کرتے ہیں جو جلالی بادشاہ ہے اور سدا دیگر بادشاہ اس کی رہے گی۔ آمین۔ اپنے سروں کو ہم جھکائیں کرتے ہیں۔